everyone, welcome to the new video with a new chapter, an interview with Sir Edmund Hillary. So in this chapter, there is an interview with the Edmund Hillary. माउंटेनियरिंग, माउंटेन पर चढ़ना अपने आप में ही एक बहुत ही रिस्की, बहुत ही गट्स चाहिए चढ़ने के लिए. यू नीड सम पेशेंस, यू नीड स्किल्स एंड ऑल्सो यू नीड सम लक. So it is a very enormous, it's a very big task. So let's move ahead with the story to know more about it in detail. Chapter 12, an interview with Sir Edmund Hillary. About the chapter, mountaineering takes a lot of patience, guts, skills and some luck. तो mountaineering जो है उसके लिए आपको guts भी चाहिए, skills भी चाहिए, patience भी चाहिए, luck भी चाहिए. We can easily connect a mountain with a humongous task. तो आप कह सकते हो कि ये एक बहुत ही humongous means it's a enormous task. ये बहुत बड़ा task है. Thereby we can learn here to deal with the difficulties in our life. तो इससे हम सीख सकते हैं कि अपनी लाइफ की डिफिकल्टीज से हमें कैसे जीतना है. Moving ahead, let's do the warm up. Read newspaper headlines carefully. Now rewrite the headlines using A and or all the different paper strips. You can use strips of different colors. Paste these strips in the space given below and you may have to make some changes in the sentences. One has been done for you. Now what you have to do, आप पहले न्यूज़पेपर की हेडलाइंस को अच्छे से आपको पढ़ना है, फिर उन हेडलाइंस को आपको रीराइट करना है, उसमें ए एंड दा का यूज करना है अलग पेपर स्ट्रिप्स पे. फिर उन आप स्ट्रिप्स को यूज करोगे अलग अलग कलर्स की, देन उसको पेस्ट करना है आपको स्पेस जो गिवन है. देन यू हैव टू मेक कुछ चेंजेस भी आपको करने हैं इन द सेंटेंसेस. लाइक वन हैज बीन डन फॉर यू, मैन इंजर्ड बाय बस, तो अ मैन वाज इंजर्ड बाय अ स्पीडिंग बस. तो इस तरीके से आप उसको रीराइट कर सकते हैं. So this you have to do it yourself. Now moving ahead with the chapters, let's get started. Sir Edmund Hillary and Tenzing Norgay were the first men to successfully climb Mount Everest. तो ये दो पर्सन थे, एडमंड हिलरी एंड टेंजिंग नॉर्गे, जिन्होंने सक्सेसफुली माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था. सर एडमंड हिलरी वाज बोर्न इन 1919 में पैदा हुए थे एंड ग्रू अप इन ऑकलैंड में बड़े हुए थे, दैट इज इन न्यूजीलैंड. It was in New Zealand that he became interested in mountain. और न्यूजीलैंड में जब वो रहे तभी उनको बहुत इंटरेस्ट आया इन माउंटेन क्लाइंबिंग में. Although he made his living as a beekeeper, तो वो अपना काम चलाते रहते थे. As a beekeeper he was working. He climbed mountains in New Zealand. तो न्यूजीलैंड में भी वो माउंटेन्स पर क्लाइंब करते थे. Then in Alps and finally किसमें, हिमालयाज में, where he climbed 11 different peaks of को climb कर चुके थे of over 20,000 feet. और by this time Hillary was ready to confront the world's highest mountain. और अब तक जो थी हिलरी, he was ready कि वो confront कर सके वर्ल्ड के सबसे highest mountain. Sir Edmund's life was darkened by the loss of his wife and daughter in a plane crash in 1975. अब उनकी लाइफ में डार्कनेस आ गई थी क्योंकि उनकी वाइफ और डॉटर एक प्लेन क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी इन 1975. He continued to occupy himself with environmental causes and humanitarian work on behalf of the Nepalese people for the rest of his life. तो उन्होंने अपने आप को बिजी रखा, अपने आप को डाइवर्ट करा और अपने आप को ऑक्यूपाइड रखते थे इन्वायरमेंटल वर्क, इन्वायरमेंटल कॉजेस को लेकर, ह्यूमैनिटेरियन वर्क, किसके बिहाफ पे, जो नेपाल के लोग थे उनके बिहाफ पे, ताकि अपनी पूरी लाइफ वो यही सब काम करते रहे ताकि वो अपने आप को ऑक्यूपाइड रख सके. He died at his home in New Zealand at the age of 88 की एज में ही उनकी डेथ हुई थी अपने घर पे न्यूजीलैंड में, mourned by his countrymen and by lots of admirers around the world. और उनके लिए उनकी शोक सभा में बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे and it was many people who admired him. In 1951, Hillary was invited to join a New Zealand climbing team that trekked in the Himalayan mountains. फिर 1951 में उनको इनवाइट किया गया कि वो माउंटेन जो क्लाइंब करते हैं, न्यूजीलैंड की जो क्लाइंबिंग टीम है उनको ज्वाइन किया उन्होंने. एंड दैट वाज ट्रैक, वो ट्रैकिंग वगैरह पे जाते थे हिमालयन माउंटेन्स पर. लेटर ही वाज चूजन फॉर एन एवरेस्ट एक्सप्लोरेशन टीम लेड बाय हिज ओल्ड हीरो. बाद में उन्हें चूज किया गया एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए, वहां के एक्सप्लोरेशन के लिए टीम ने उन्होंने चूज किया बाय हिज ओल्ड हीरो, दैट वाज एरिक शिप्टन ने. Hillary's great energy and mountaineering skills won him a spot on the 1953 British Everest expedition team. अब हिलरी की जो उस टाइम पे जब वो यंग थे, it was having a lot of energy in him and उन्हें माउंटेन की स्किल्स बहुत थी, वो माउंटेन्स चढ़ते रहते थे, तो माउंटेनियरिंग स्किल्स भी उनकी अच्छी थी. तो हैज अ स्पॉट ऑन 1953 में ब्रिटिश एवरेस्ट एक्सपीडिशन पर वो गए थे
The British had been trying for nearly 40 years to be the first to scale the world's highest mountain. ब्रिटिश बहुत टाइम से कोशिश कर रहे थे, they were trying for 40 years कि वो सबसे पहले वहां के लोग पहला जो है जा सके, ये देख सके कि वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन पर स्केल कर सके. फाइनली ऑन May 29, 1953 में एडमंड हिलरी एंड शर्पा टेंजिंग नॉर्गे they became the first men to stand on top of the world. सबसे पहले थे जो उस टॉप पर खड़े हुए जाकर. To learn more about their adventure, read the following interaction. तो उनके एडवेंचर के बारे में हमें और जानने के लिए उनके इस इंट्रैक्शन को हमें पढ़ना पड़ेगा. He had with students, जो उसको स्टूडेंट्स के साथ उनका हुआ 1996 में. Question: How did you have enough energy to climb the mountain Everest? कि कैसे आपके पास इतनी एनर्जी थी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने के लिए? आंसर: I was very fit and had much climbing experience. मैं बहुत फिट था और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था माउंटेन्स को क्लाइंब करने का. Question: I was wondering if you have any thoughts on the tragedy in the spring of 1996 on Everest in which several people were killed. उसने क्वेश्चन आया कि मैं तो ये सोच रहा था कि क्या आपके दिमाग में कभी ये थॉट नहीं हुआ जो एक ट्रेजेडी हुई थी स्प्रिंग ऑफ 1996 में एवरेस्ट पर, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे. फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक अनएक्सेप्टेबल रिस्क वर टेकन? क्या आपको लगता है कि अनएक्सेप्टेबल रिस्क लिए गए थे? व्हाट डू यू माइट हैव डन डिफरेंटली? और आप क्या अलग कर सकते थे? आंसर: मेनी पीपल हैव बीन गेटिंग टू कैजुअल अबाउट क्लाइंबिंग एवरेस्ट. आई फॉरकास्ट अ डिजास्टर मेनी टाइम्स. उसने कहा बहुत सारे लोग जो है बहुत ही कैजुअल होते हैं क्लाइंबिंग को लेकर, बट मैं फॉरकास्ट करता हूँ डिजास्टर को पहले, बहुत बार पहले चीजों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ. क्वेश्चन: हाउ कैन अदर माउंटेन्स यू हैव क्लाइंब्ड बी कंपेयर्ड टू एवरेस्ट? कि जो अदर माउंटेन्स आपने क्लाइंब किए उनको हम कैसे कंपेयर करेंगे एवरेस्ट से? कैन यू थिंक ऑफ अनदर पीक दैट्स चैलेंज्ड यू सो मच एज एवरेस्ट? तो क्या आप अनदर पीक के बारे में बता सकते हैं जिसने आपको चैलेंज किया हो, जैसे आपने एवरेस्ट जितना ही क्लाइंब करने में आपको जैसे जो चीजें फेस आपने तब करी उतना ही सेम वैसे रहा हो? आंसर: अदर माउंटेन्स दे हैव मोर टेक्निकली डिफिकल्ट रूट्स. जो अदर माउंटेन्स थे उनके जो रूट्स थे वो टेक्निकली डिफिकल्ट थे देन एवरेस्ट के कंपैरिजन में. बट नन हैव दैट 8848.88 मीटर्स ऑफ एक्सट्रीम हाइट. बट कोई भी ऐसा नहीं था जिसकी हाइट 8848.88 मीटर्स हो. क्वेश्चन: हाउ डिड यू स्लीप ऑन माउंट एवरेस्ट? आप वहां पर कैसे सोए थे? Answer: Sleeping is always difficult at high altitude, so we didn't sleep much. इतनी ऊंचाई पर जाने के बाद नींद तो बहुत मुश्किल से ही आती है और सोना इजी नहीं होता, तो हम ज्यादा नहीं सोए वहां पर. क्वेश्चन: What was the most difficult part of your adventure? आपके एडवेंचर का सबसे डिफिकल्ट पार्ट क्या था? Answer: Strong motivation is the most important factor in getting you on to the top. मोटिवेशन होना चाहिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग, तभी आप अपने सक्सेस तक पहुंच सकते हो. तो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी मेरे लिए, जिसकी वजह से मैं आज वहां तक पहुंचा. क्वेश्चन: डिड यू हैव टू कैरी ऑल योर ओन फूड और वाज देयर सम फूड अवेलेबल ऑन द माउंटेन सच एज प्लांट्स? क्या आपको अपना फूड कैरी करना पड़ा था या वहां पर कुछ अवेलेबल था, प्लांट्स या समथिंग कुछ ऐसा खाने के लिए? आंसर: वी कैरिड ऑल आवर ओन फूड. हम अपने खाना हमें खुद लेकर गए थे. क्वेश्चन: आई नो फ्रॉम रीडिंग योर स्टोरी दैट यू वर ट्रेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड ऑल्सो आर अ courageous मैन. मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी कि आप बहुत टाइम से ट्रेनिंग ले रहे थे और आप एक बहुत ज्यादा करेजियस मैन है. बट वॉज देयर टाइम अप ऑन एवरेस्ट व्हेन यू वर स्केयर्ड? कैन यू डिस्क्राइब व्हाट वाज हैपनिंग? तो क्या ऐसा टाइम कभी हुआ था एवरेस्ट पर जब आप चढ़ रहे थे या वहां पहुंचने के बाद आपको डर लगा हो और ऐसा कुछ इंसिडेंट जो आप डिस्क्राइब कर सकते हो? आंसर: आई वॉज स्केयर्ड मेनी टाइम्स ऑन एवरेस्ट. मैं बहुत बार डरा था वहां पर. बट दिस इज ऑल पार्ट ऑफ द चैलेंजेस. लेकिन अगर हमें डर लग रहा है तो ये सब चैलेंजेस हैं जो हमें फेस करने हैं. When I fell down a crevasse, it was pretty scary. जब मैं वहां से फिसलने लग रहा था तो बहुत ही डरावना था वो मेरे लिए. क्वेश्चन: What did it look like up at that high on the mountain? कैसा लगता है उस पर इतनी ऊंचाई पर चढ़ने के बाद आपको सब कैसा दिखता है? How long did it take you to climb Mount Everest? आपको कितना समय लगा माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करने में? आंसर: From the summit we could see at least 100 miles. जब हम पहुंचे थे हमें ऐसा लगता कि 100 miles around in every direction, हर डायरेक्शन में. It took 7 weeks to grow from base camp से वहां तक जाने के लिए 7 weeks लगे थे to the top, but only 3 days coming down. लेकिन नीचे आने में सिर्फ 3 दिन.
क्वेश्चन, हाउ मेनी पाउंड्स ऑफ फूड डिड यू टेक, व्हाट काइंड ऑफ फूड डिड यू ईट। उसने कहा, नाउ ही आज तक क्वेश्चन पूछा गया कि कितने पाउंड्स ऑफ खाना आप वहां लेकर गए और आपने कितना खाना खाया, कैसा फूड खाया। आंसर, हाई ऑन द माउंटेन फूड इज repugnant and you have to make yourself eat. Most of our energy came from very sweet drinks, mostly hot weak tea with lots of sugar. तो अब वहाँ पर जो खाना होता है वहाँ बनाना आसान नहीं होता और वहाँ पर इतना खाना जो है हमें अच्छा भी नहीं लगता है, टेस्ट भी कम आ पाता है। तो वहाँ पे हम स्वीट टी पीते थे, स्वीट ड्रिंक्स लेते थे, ज़्यादातर एनर्जी हमें उससे मिलती थी। मीठा, बहुत तेज मीठा वाला हम टी पीते थे, लॉट्स ऑफ शुगर। क्वेश्चन, हाउ डिड यू फील व्हेन यू रीच द टॉप ऑफ एवरेस्ट। आपको कैसा लगा जब आप एवरेस्ट पर पहुंचे। वर यू एबल टू सी एनीथिंग, व्हाट डिड द वर्ल्ड लुक लाइक फ्रॉम अप देयर। तो क्या आपको कुछ दिखाई दे रहा था, वहां से आप खड़े होकर वर्ल्ड को देख पा रहे थे, तो आपको कैसा लग रहा था नीचे। आंसर, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट आई हैड अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन। जब मैं उसके पीक पर पहुंच गया था, वहां पहुंचने के बाद मुझे बहुत ही सेटिस्फैक्शन महसूस हुआ टू बी देयर फर्स्ट, कि मैं सबसे पहले वहां पहुंचा। वी कुड सी अ वास्ट डिस्टेंस इन एवरी डायरेक्शन। हम जिस भी डायरेक्शन में देखते थे ऐसे दूर दूर तक डिस्टेंस दिखता था, बहुत ही दूर तक फैले हुए माउंटेन्स, मोस्टली माउंटेन्स, ग्लेशियर्स और हाई प्लेटोज ही दिखाई देते थे। Question, how does it feel to be called sir? What was it like being knighted? That must be really cool. तो उन्होंने पूछा कि आपको कैसा फील हुआ जब आपको सर बुलाया गया, आपको रिकॉग्नाइज किया, आपकी जो आपने अचीवमेंट्स करी उसके लिए आपको पहचाना जा रहा है, तो इट मस्ट बी रियली कूल। आंसर, becoming a sir is slightly uncomfortable at first, although it is a considerable honor. सर बनना और सुनना पहली बार तो बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि अनकंफर्टेबल लग रहा था, बट बाद में अच्छा लगा। इट्स ऑनर कि मेरे को ये सब ऐसे बुला रहे हैं। इट इज अमेजिंग हाउ क्विकली यू बिकम अकस्टम टू इट। और फिर धीरे धीरे उसकी हैबिट हो गई। एंड आई स्टिल हैव द सेम फ्रेंड्स एंड अ सिमिलर वे ऑफ लाइफ। आज भी मेरे वही सेम फ्रेंड्स हैं, सेम तरीके से मैं अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। द एक्चुअल नाइटनिंग टुक प्लेस इन बकिंगम पैलेस बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। इट वॉज अ वेरी इंप्रेसिव सेरेमनी। जो सबसे ज्यादा मुझे अचीवमेंट, जो भी मैंने अचीव किया, तो आई वॉज ट्रीटेड बाय द क्वीन ऑफ इंग्लैंड। तो वहां पर मुझे इतना ज्यादा ऑनर्ड और इतना ज्यादा रिस्पेक्ट मिली, एंड दैट वाज वेरी इंप्रेसिव सेरेमनी। क्वेश्चन, इज देयर सम मैसेज यू वुड लाइक टू गिव टू द यंग पीपल एंड किड्स। तो ऐसा कोई मैसेज जो यंग पीपल और किड्स को आप देना चाहते हैं। आंसर, यस, आई वुड लाइक टू टेल ऑल द किड्स एंड यंग पीपल दैट चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ। मैं सबको ये बताना चाहता हूँ, चाहे बच्चे हैं चाहे यंग पीपल है, कि चैलेंजेस अगर हमारी लाइफ में आते हैं तो वो हमारी ही लाइफ का हिस्सा है। We should never give up our efforts just because of these challenges. इन challenges की वजह से हमें अपने efforts को give up नहीं करना है, कि अगर हमारे सामने कोई difficult task आ जाता है तो हम give up कर दें। No. Face the challenges courageously and emerge winner. हर challenge को courageous तरीके से, bravely, with so much courage के साथ face करना और winner बनना है। There is no other feeling like the feeling of being a winner. क्योंकि जैसे हम जब कोई चीज को पा लेते हैं, एक फीलिंग जो विनर जो होती है, उस जैसी फीलिंग कोई और नहीं होती है। So set your goal and start working hard to attain that goal. तो अपना गोल को सेट करो और उसके लिए वर्क करो, हार्ड वर्क करो, तो उसको अचीव कर सको। Now the moral learned, we should never give up on our goals, no matter how hard the journey may be. हमें अपने गोल्स को नहीं छोड़ना चाहिए, गिव अप नहीं करना चाहिए, कितनी भी चैलेंजेस आए, कितनी डिफिकल्टीज आए, हमारी जर्नी कितनी भी हार्ड हो। चैलेंजेस आर अ पार्ट ऑफ लाइफ, बट विद हार्ड वर्क, करेज एंड डिटर्मिनेशन वी कैन ओवरकम देम। चैलेंजेस हार्ड होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बट अगर हम डिटरमाइंड हैं, अगर हम मेहनत करते हैं, एफर्ट्स करते हैं, गिव अप नहीं करते हैं, तो हम उनको अचीव कर लेते हैं और उनको ओवरकम कर लेते हैं। So I hope you all have understood the lesson which this chapter wants to tell you. So you all should try hard to achieve your goals and you should never give up on your dreams. So we'll meet in the next video with the next interesting chapter. Till then, bye-bye. Take care. Thank you.